Hello and welcome to Amjad Ali RJ channel and a very good evening to all wonderful viewers. Viewers, I am extremely happy and pleased to have a genuine cricket follower and analyst who needs no introduction at all. Without further ado, let's move to NKB, a widely regarded personality from corporate sector. Assalamu alaikum ji. Walaikum salam, sir. Thank you very much for sparing your precious time, sir. Niji, thank you very much for calling me in. Most welcome. Pleasure is all mine. Sir, without further ado, thus far, both low scoring games between Pakistan and West Indies. What's your take as Team Pakistan perhaps seldom thinks about going over 200 runs, which is contrary to the modern game requirements? What would you say? I think it's a lot is actually to be blamed on the wicket on which these matches are being played. This wicket is not the type of wicket a T20 match should be played on, which should be a very supportive batting wicket and then somewhat support the bowlers as well. These wickets, the ball is keeping low. There is uneven bounce, so to hit the ball is quite difficult. And so anybody who is trying to hit the ball well in these games is a genuine good batsman, definitely. A normal hitter cannot possibly do that thing, and that's why these games are quite low scoring games, which is not the spirit of a T20 a match. But nonetheless, whatever it is, these two have been very thrilling encounters. The only issue is that the West Indies team is not uh, in the top league of cricketing teams. So as we played a series against Bangladesh before coming to West Indies, we didn't play very well against Bangladesh as well, and Bangladesh is also toward the bottom end of the table in the overall cricket rankings. So considering this, while we are trying to build up a combination for our future, cricketing team, the T20 outfit, uh, it's they are good practice games, but in terms of any real benefit to the team, I don't really think it is giving us that flavor. Two things very important. One, for a game which you have to play against the top three, four cricketing nations, Australia, India, South Africa, England. Uh, this combination, which is currently in place, is not the combination. And I don't really think we will be able to do well in the coming Asia Cup as well against India if the same combination prevails. You need to have a couple of batsmen who are genuine batsmen. And this team, सवाए सलमान अली आगा के और किसी हद तक फरहान के कोई genuine बैट्समैन हिटर्स हैं. साइम भी अच्छा बैट्समैन है, but Saim has not been in that form as he was before his injury. And since his injury, PSL he was okay, and the couple of series he has played one odd games he scores. Otherwise, not very good, not to the mark he was on. Fakhr, again, occasional performing well, performing not well. This is, as you very rightly said, the style of cricket we are playing, 24 runs in 20 balls. It is not what the rest of the nations are doing. If you have to score, आपने भी ये वेस्ट इंडीज और इनकी सीरीज देखी ऑस्ट्रेलिया की, 5 मैच हुए, 4 मैच 200 प्लस के थे, चारों चेज किए उन्होंने और 220-25 भी चेज हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने एक मैच में 170 की चेज 15-16 ओवरों में कर दी. तो मतलब एक मैच में 214 रन भी उन्होंने 16 ओवर में बना दिए. तो ये जो क्रिकेट अब T20 मॉडर्न क्रिकेट है वो बहुत चेंज हो गई है. उसमें 200 के स्ट्राइक रेट वाले जो कि हमारे पास शायद हसन नवाज के अलावा कोई भी नहीं है, जो कि बीच में आए और आपको 200 के स्ट्राइक रेट से कम 2 बैट्समैन ऐसे हों जो 30-40 रन आपको 15-20 बॉलों में बना के दे के जाके जाए. वो सवाए हसन नवाज के आपके पास कोई नहीं है. फिर एक आपके पास ऐसा बैट्समैन चाहिए कि अगर आपकी विकेट्स गिर रही हैं तो वो इनिंग्स को लेके चले. बड़ी टीमों के बॉलर भी अच्छे होंगे, उनकी जो स्ट्रेंथ है फील्डिंग की वो भी डिफरेंट होगी, वो रन भी सेव करेंगे. तो वो भी आपके पास ना बाबर है ना रिजवान है. ठीक है, हम उन्हें ब्लेम करते रहे जिस तरह भी कहें, उनका जो रेट ऑफ स्कोरिंग था वो बहुत अच्छा नहीं था. बट एक बंदा तो बहरहाल वैसा चाहिए जो कि आपकी इनिंग्स को लेके चल सके. अगर 3-4 विकेट ऊपर से गिर जाएं तो एक बैट्समैन आपको 20 ओवर्स तक तो ले जाए और आपको 150 करवा दे. तो इसमें ये इशू है. दूसरा, इफ यू कम टुवर्ड्स द बॉलिंग साइड,
ये विकेट्स आपने बिल्कुल शुरू में ठीक कहा, ये स्पिनर्स को मदद कर रही हैं, तो आपके स्पिनर्स ने, नवाज ने भी दोनों मैचों में 3-3 विकेटें ली, साइम ने भी एक दो विकेटें ली, और जितनी भी विकेटें ली वो स्पिनर्स ने ली बेसिकली। आप वेस्ट इंडीज जैसी टीम से आखिरी 2 ओवरों में 40 रन खा गए और आपके फास्ट बॉलर खा गए, और वो फास्ट बॉलर भी आपके मेन फास्ट बॉलर थे। पिछले वाले मैच में तो चले फहीम अशरफ को मार पड़ गई थी, तो आपने कह दिया कि जी वो स्टॉक बॉलर है। वहां पे सलमान आगा की शायद बहुत बड़ी गलती थी कि आखिरी ओवर के लिए उसने फहीम अशरफ को क्यों रखा हुआ था। आपकी क्रिकेट में तो 6 बॉलों में 36 रन बन सकते हैं, कोई बईद नहीं है। और अगर आपका ख्याल है कि आप नहीं बनवा सकते तो बन जाते हैं बाज़ दफ़ा, तो 30-35 भी बन जाते हैं और बड़े आराम से बन जाते हैं। एक आधी वाइड हो जाती है, कोई वाइड का चौका निकल जाता है, तो वो मिस हुई हुई गेंद के साथ भी बैट, और लोगों ने बनाए हैं। तो यहाँ पे जो इशू नज़र आ रहा है वो आपकी बॉलिंग में भी स्ट्रेंथ वो वाली नहीं है जो कि होती थी। हारिस रऊफ काफ़ी मार खा रहा है, शाहीन ने ठीक की है बॉलिंग, बट वो भी उस तरह की फिटनेस नहीं है या वो फॉर्म नहीं है जो शाहीन का एक खासा थी या होती रही है पहले। और हसन अली इज बैक, लेट्स सी व्हेन द विकेट्स विल बी प्रॉपर, bit supportive fast bowling, we'll see how would he fare in. He's still better than the other 2 bowlers which I was just talking about. In the spinning side, you're doing okay. Sufyan Mukim has done well. Nawaz is a good re-entry because he bats well down the order as well. और अच्छा स्ट्राइक रेट भी उसका हो जाता है जब वो स्ट्राइक करने लग पड़े। और जो इसके पॉजिटिव्स हैं वो हैं हसन नवाज और साइम का किसी हद तक वापस आना, चले वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस हो गई। जो अभी तक के नेगेटिव्स हैं, बड़े नेगेटिव, वो है आपकी फास्ट बॉलिंग, आपकी बॉलिंग की बाइट नहीं है, आपकी बैटिंग में वो स्ट्रेंथ नहीं है। बार बार आप वो देखते हैं कि 3-4 खिलाड़ी आउट होते हैं तो लाइन लग जाती है, या 1-2 ऊपर से निकलते हैं तो लाइन लग जाती है, और फिर नीचे से आके रोकना पड़ जाता है। तो ये जो 150 टाइप के स्कोर है, ये तो आजकल बांग्लादेश भी कर लेता है, ये तो आजकल श्रीलंका भी कर लेता है, और ये तो शायद आगे अभी आप देखिएगा ओमान और यूएई भी कर जाएंगे। पिछले दिनों यूएई ने अफगानिस्तान को हराया है बाय द वे एक मैच के अंदर उधर शारजा में। तो things are slightly getting better, but they are not getting the way they should be. So let's see, let's hope ODI सीरीज इसके बाद है, उसमें क्या होता है। लेकिन T20 के अंदर अभी आपका आउटफिट बन नहीं पा रहा, मेरा एनालिसिस इतनी है। वेरी वेल एनालाइज एंड बड़ा अच्छा आपने उसको समराइज किया। सर मैं एक्चुअली बहुत सारे सवाल थे जो आपने बीच में खुद ही कवर कर दिए। मेरा सवाल आपसे, सॉरी जो मैं भूल गया, इस टीम में जो एक ऑड मैन आउट है ना, वो सबसे ज्यादा ऑड मैन आउट वो है हारिस। हम उसको कंटिन्यूसली खिला रहे हैं, काफी अरसे से खिला रहे हैं एज ए विकेट कीपर, उसको खिलाना शायद पड़ रहा है या बनाया हुआ है एक उजर। ही हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग। पीएसएल में भी परफॉर्मेंसेस पैची थी, किसी एक आध मैच में कर गए, 2-4 मैचों में कर गए, 10-12 मैचों में से अगर 2-4 में आपने किया तो दैट्स नॉट अ गुड परफॉर्मेंस। 10 का मतलब होता है कि 6 आप अच्छा खेलें कम से कम। और विकेट कीपिंग के ऑप्शंस आपके पास बहुत सारी मौजूद हैं। साबदा फरहान इज डूइंग गुड, he can keep the wickets as well, so that will give you one extra person in the team which you need in the shape of a proper bowler. Very, very, very well said, because I was about to come towards this very pinching area. मेरा सवाल आपसे ये था, हारिस को हमने पहली गेम में जिसमें हमने 178 रन बनाए 8वीं पोजीशन पर भेजा, उसने एक बॉल का सामना किया और उसमें उसने छक्का लगाया। दूसरी गेम में ऑल ऑफ अ सडन हमने उसे 2 डाउन भेजा, उसने 4 रन बनाए 6 गेंदों में। तो आपको क्या कैप्टेंसी फ्लॉ लगता है, या थिंक टैंक कंफ्यूज हो गया कि इसको सेलेक्ट करना है प्लेइंग 11 में या नहीं करना? प्रॉब्लम क्या है? देखिए अमजद, मैं नहीं समझता कि आपका कैप्टन जो है वो इस वक्त इतना स्ट्रांग है कि उसकी कॉल पे टीम बनती है। इज अ न्यू बॉय, ही इज बीइंग टेस्टेड, तो ये थिंक टैंक ही उसको चला रहा है, और उसी की थॉट प्रोसेस के ऊपर इस टीम में चेंजेस हुई हैं और ये अप्स एंड डाउन हो रहे हैं। आई डोंट नो हाउ आर दे थिंकिंग अबाउट इट। Haris was a very good prospect. The way he came up 2 years ago during the World Cup, and he played very well. But since then, somehow he has lost the bite. And आपको T20 में आप पूरी दुनिया में देख लें, टीमें बड़ी जल्दी वो शफल कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अभी आप वेस्ट इंडीज में देखते हैं, एक लड़का 16-17 साल का भी खेल रहा है, एंड्रयू समथिंग नाम है। ही इज अ गुड पिंच हिटर, ओपनिंग पे उसको लाए हुए हैं, और वो तो सारी दुनिया ऐसे करती है। ये उस तरह का नहीं है कि जिसमें आपको 15-15, 20-20 मैचों में चांस देते रहे और वो आप ट्राई करते रहें।
इसके फौरन बाद आपका एशिया कप आ जाना है, आप कितने तजर्बे और कर लेंगे। और अगर एशिया कप में आपको किसी ओमान या यूएई से मार पड़ गई ना, तो आपका मोराल बिल्कुल ही ज़मीन पे आ जाएगा। पहले ही आया हुआ है बांग्लादेश से हार के, अनफॉर्चुनेटली। तो आई थिंक ये एक पोजीशन कोई ठीक करने की ज़रूरत है। इस टीम में आपको किसी वक्त, इफ़ यू वांट टू बी इन द टॉप 5 टीम्स इन T20, आपको शायद बाबर को वापस लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, वन डाउन की पोजीशन पे, या उसको ओपनर लाएं और फिर वो वन डाउन कोई और आ जाए, या ओपनिंग अगर आपके पास ठीक है, दोनों लेफ्टीज इस वक्त ये साहबजादा फरहान और साइम कर रहे हैं, तो आपको वन डाउन के लिए उसको करना पड़ेगा और फखर को आप नीचे ला सकते हैं। बट एक बंदा आपको ऐसा चाहिए होगा जो कि थोड़ी तेज विकेटों के ऊपर, जहाँ पे गेंद हिल रही हो, वो वहां पे विकेट पे खड़ा हो सके। ये आपने साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में देख लिया था पीछे। या यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। अब सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, साहबजादा फरहान जो है उसने पहली गेम में 14 रन बनाए, दूसरी में सिर्फ 3 रन बनाए, तो क्या ये पॉसिबिलिटीज क्या उसने डिफरेंस ऑफ बॉलिंग क्वालिटीज को कहेंगे एज कंपेयर टू द बांग्लादेशी बॉलर्स, या प्रेशर है सब कॉन्टिनेंट से, फेमिलियर ट्रैक से हट के खेल रहा है? एक तो ये विकेट का भी इशू है, कोई इतनी आसान विकेट नहीं है, और दूसरा होल्डर इज बॉलिंग वेरी वेल। ओपनिंग ओवर्स के अंदर होल्डर की दोनों मैचेस में बॉलिंग देखें, एक्चुअली अगर आप वेस्ट इंडीज का स्टार देखें इन दोनों मैचेस में, तो वो होल्डर ही रहा है। पहला मैच भी उसने ऑलमोस्ट निकाल दिया था, उसको अगर बीच में कोई 10-12 रन कहीं और मिले होते तो वो खड़ा रहा, और उसने बड़े अच्छे तरीके से, बॉलिंग में भी बहुत अच्छा था। तो होल्डर इज प्लेइंग वेरी वेल और उसकी बॉलिंग वाज वेरी गुड। सो द डिफरेंस बिटवीन द बॉलिंग ऑफ बांग्लादेश लाइनअप वर्सेस होल्डर इज नंबर 1 की थिंग। नंबर 2, ही नोज हाउ टू बॉल ऑन दीज विकेट्स। वो इनके एरिया की विकेट्स हैं, तो ये वेस्ट इंडीज की जितनी भी विकेट्स हैं, ये तो चले फ्लोरिडा है, लेकिन आप वेस्ट इंडीज में भी जाएं तो वहां पे हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते, वहां 2-2 250 रन नहीं है इतने आराम से। ये पहली सीरीज थी ये जो ऑस्ट्रेलिया वाली थी, जिसमें ये 200 प्लस बनाते रहे और वो 200 प्लस चेज करते रहे। तो जिससे क्वालिटी का आपको डिफरेंस पता लगा कि टीमों की क्वालिटी का डिफरेंस क्या है। तो अब अगर आप वो देखें, द वे ऑस्ट्रेलियंस और इंग्लिश टीम्स आर प्लेइंग इन T20, हमारे पास तो अनफॉर्चुनेटली उसके हम करीब भी नहीं है। हमारा एज हमेशा होता था बॉलिंग, सो हम बैटिंग का डेफिसिट कवर कर लेते थे अपनी बॉलिंग की स्ट्रेंथ से। अनफॉर्चुनेटली पिछले साल सवा साल से हमारी बॉलिंग भी वीक हुई हुई है। ना हारिस वो वाला हारिस है, ना शाहीन वो वाला शाहीन है, ना नसीम शाह वो वाला नसीम शाह है जो शुरू में था। सो दैट्स व्हाई ही इज बीइंग पुल्ड आउट। इस बांग्लादेश की सीरीज में एक बॉलर नया, मुझे भी उसका नाम भूल रहा है, सलमान समथिंग, सलमान मिर्जा। जी, सलमान मिर्जा, जो कि PSL में भी अच्छा खेला था और इस सीरीज में बहुत अच्छा खेला। मेरा ख्याल है उसको चांस मिलना चाहिए था यहाँ पे। I don't know why they haven't taken him, because वो अच्छी, he was on the song, एक्सपीरियंस को सर बॉलिंग वाज, मतलब वो वाकई क्वालिटी नजर आ रही थी अच्छी। तो ऐसे बॉलर को चांस देना चाहिए, आगे लेके चलना चाहिए। एक और जो एडिशन हो जाएगी, इंजरी से वापस आ जाएंगे वसीम जूनियर, वो अभी रीएप पे हैं। वसीम जूनियर इज अ वेरी गुड बॉलर, डेथ ओवर्स का अच्छा बॉलर है। सो लेट्स सी, वी हैव सम होप इन द बॉलिंग कमिंग बैक, बट बैटिंग में कोई स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी आपको, और ये हारिस वाला मसला तो रिजॉल्व करना पड़ेगा। हसन नवाज इज अ वेरी गुड इंक्लूजन, a very good addition, I would say. He's gelling in well. Salman Agha, already dependable, good, fine. He's into a leading role as well. बाकी 2-3 चेंजेस के साथ ये टीम ठीक हो सकती है। राइट, अगर पहली गेम की बात करें सर, तो पाकिस्तान के जो स्पिनर्स थे उन्होंने 10 ओवर्स किए, 73 रन दिए एट द रेट ऑफ 7.30, और 7 में से 6 विकेटें उन्होंने ली। वेयर एज जो पेसर्स थे उन्होंने 10 ओवर्स में 99 रन दिए, वर्चुअली 10 रन एंड ओवर, और 1 विकेट ली, वो भी आफरीदी ने। अगर दूसरी गेम पे आए तो अगेन डोमिनेंट जो रहे हैं वो हमारे स्पिनर्स रहे हैं। उसमें फिर नवाज की 3 विकेट, जैसे आपने शुरू में मेंशन किया, साइम की फिर 2 विकेटें, एंड देन सुफियान मुकीम की 1 विकेट। तो वर्चुअली सारी जो विकेटें हैं वो तो आपके स्पिनर्स ले रहे हैं। दूसरी जो गेम थी उसमें 53 रन दिए 12 ओवर्स में स्पिनर्स ने, व्हिच मींस लेस देन 4.5। Whereas again अगर पेसर्स की बात करें तो 8 ओवर्स में 79 रन, अगेन 10 एंड ओवर। तो ये तो एक बहुत बड़ा कंसर्निंग एरिया है पाकिस्तान के लिए कि स्पिनर्स जो है वो एक्सेल कर रहे हैं। वेरस जो है, जैसे आपने कहा बिल्कुल राइटली, सो यू सेड, यू पॉइंटेड इट वेरी राइटली, कि हमारा जो डिपेंडेंसी थी, इट हैज ऑलवेज बीन आवर बॉलिंग, कि हम अगर कम रन्स भी करते थे, वी वर क्वाइट श्योर कि यार ये बॉलर्स जो है ना डिफेंड करवा देंगे हमें। बट नाउ वी आर क्वाइट वल्नरेबल। ओडीआई में 300 प्लस रन,
T20 में 200 प्लस रन कंसिस्टेंटली बन रही है। तो वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, जैसे आपने कहा कि ये टॉप रैंक की टीम्स नहीं है, नहीं तो है। इवन देन इन्होंने पाकिस्तान की टीम को खासा दबाव में लाया। सर सवाल मेरा ये कि अब स्पिनर्स इतना अच्छा खेल रहे हैं, डोंट यू थिंक इट्स टाइम टू मूव ऑन? फहीम अशरफ की जगह अगर खुशदिल शाह को ले लिया जाए, वो अच्छा एक ऑलराउंडर है, हैंडी है, स्पिनर भी है, लेफ्ट आर्म विद इज नो मार्क विद द बैट। तो आपकी या बात फिर हमसे आप ठीक है, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि आपने सारी जिंदगी इन विकेटों पे तो नहीं खेलना ना। एशिया और यहाँ पे स्पिनर्स पर अच्छा करते हैं। एशिया कप में भी आपको स्पिनर चाहिए होंगे। पिछले भी आपने देखा इंडिया में वर्ल्ड कप में भी स्पिनर्स की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी। अनफॉर्चुनेटली हम उसामा मीर को लेके गए थे उसके अंदर। तो लेकिन आपने ये देखना है कि पाकिस्तान से बाहर या ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स, इंग्लैंड की विकेट्स, साउथ अफ्रीका के विकेट्स, और उधर भी टूर्नामेंट्स होने हैं, तो उन पे तो आपको फास्ट बॉलर्स की बहरहाल रिक्वायरमेंट रहनी है और चाहिए, और स्ट्राइक बॉलर्स चाहिए। जो फ़हीम अशरफ वाली आपने बात की, फ़हीम अशरफ का मसला सिर्फ यह है कि वो लेटर डाउन द ऑर्डर आके स्कोर कर जाता है। उसको हमेशा से उसकी बॉलिंग हैज़ नेवर बीन हिज स्ट्रेंथ। उसकी बॉलिंग का मतलब यही होता है कि आप शुरू में 1-2 ओवर करवा लें फर्स्ट चेंज के ऊपर, और उसके बाद आपसे तवक्को करेंगे वो रन कर जाएगा नीचे आके। वहां पे वो उसकी एक स्ट्रेंथ है। लेकिन वो मसला ये है कि आपके पास कोई ऑलराउंडर ही नहीं है बिल्कुल भी। ऑलराउंडर्स तो बिल्कुल ही अब फारिग हो गए हैं, या तो बॉलर हैं या बैट्समैन हैं। नवाज के वापस आने का भी एक मकसद यही बनता है कि आपको ऑलराउंडर चाहिए, तो लिहाजा आप एक दरमियाना ऑलराउंडर भी अगर आपको नजर आता है फ़हीम अशरफ जैसा या नवाज जैसा, तो यू हैव टू पिक हिम अप। लेकिन स्पेशलिस्ट बॉलर आपको चाहिए। सलमान मिर्जा को मे बी ग्रूम करने की जरूरत है, मे बी वसीम जूनियर है, उसको देखना चाहिए। एक दो और बॉलर्स भी उस वक्त परफॉर्म कर रहे थे। मुझे उनका एक पीएसएल के अंदर और लड़का बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आकिफ जावेद। आकिफ आकिफ जावेद, या यस। आकिफ जावेद। तो मेरा ख्याल है आपको ये जो हमारा जो एक नाम बने हुए हैं, ये हारिस रऊफ एंड शाहीन, इनको रेस्ट दे के थोड़ा सा ट्राई कर लेना चाहिए। अगर आप बैटिंग में हर दुनिया जहान की चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, हुसैन तलत को पता नहीं कोई 18-20 मैच आपने खिला दिए हैं, अल्लाह के फजल से उसने एक दफ़ा भी स्कोर नहीं किया, और आपने हारिस को 15-20 मैच, 25-30 मैच खिला दिए हैं, और उसका भी स्कोर कोई 30-40 से ऊपर नहीं गया कभी भी। तो आप बॉलर में भी ये ट्राई करके देख लें, और शायद आपको स्ट्राइक कर जाए बॉलर, क्योंकि बॉलिंग को आपको ठीक करना पड़ेगा, फास्ट बॉलिंग को। और वो सर अभी नामों वाली सुबह गेम से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप नामों वाली गेम से बैटिंग में बाहर निकल आए हैं और आपने बाबर को और रिजवान को बिठा दिया है बेंच पे, बाहर निकाल दिया है, तो बॉलिंग में भी कर लें। राइट सर, तीसरी और आखिरी गेम वर्चुअली बेस्ट ऑफ 3 का अब ये फाइनल बन गया है पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का। सुबह 5 बजे पाकिस्तान सेंट्रल टाइम पे ये गेम आ रहा है। सो डू यू थिंक प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस करनी चाहिए, या शुड वी मूव अहेड विद द सेम प्लेइंग 11? देखिए, इस वक्त मुझे नहीं पता कि ऑप्शंस बेंच में क्या हैं। हारिस को बिठा के आप किसको खिला सकते हैं दोबारा? अगर हुसैन तलत को ही खिलाना है तो उससे तो बेहतर है हारिस को ही खिला दें। सर हमारे तो पास खुशदिल शाह बचता है, अबरार बचता है, जब या बॉलिंग में खुशदिल हमारे शाह। पास। नहीं, इब्रार की तो देखें, अब आप कितने स्पिनर खिला लेंगे? 4 स्पिनर तो खिला के मैच नहीं खेल सकते ना। सुफियान मुकीम है, इब्रार को अगर आपने टेस्ट करना है तो ठीक है, टेस्ट करने की हद तक इज फाइन, बट सुफियान इज डूइंग वेल। ये नवाज भी ठीक कर रहे हैं, साइम इज डूइंग, बल्कि उसकी कैरम बॉल तो बहुत अच्छी है इस दफा, वो काफी कंट्रोल से करवा रहा है। तो उसने काफी लगता है मेहनत की है उस साइड, उस वाली साइड पे। आपको ऑलराउंडर्स चाहिए, और आपको ये ऑलराउंडर्स डेवलप करने पड़ेंगे, और खुशदिल शाह आई थिंक कैन बी अ गुड चॉइस। ही कैन बी ट्राइड, रादर शुड बी ट्राइड। या राइट। तो आपको लग क्या रहा है, क्या रिजल्ट आना जा रहा है? 2-1 इन फेवर ऑफ पाकिस्तान या फिर यार, अदरवाइज? हम दुआ तो हमेशा यही करेंगे। ये तो बड़ी सुबकी होगी कि अगर हम इधर से वाली सीरीज हार के आ गए, यानी फिर तो हम 2 सीरीज हार जाएं, और दोनों बिल्कुल ही नीचे बॉटम ऑफ द टेबल। टॉप 10 में तो ये 8वें 9वें नंबर की टीमें हैं। तो और पाकिस्तान की टीम T20 में बड़ा अच्छा, मतलब उसका एक वो रहा है, विच वी हैव लॉस्ट इन द लास्ट 1.5-2 years वेरी या बैडली, अनफॉर्चुनेटली। और नीड टू बिल्ड अप, नीड। और हमारा इसका इशू ये है, पीएसएल की जो परफॉर्मेंस होती है ना, वो कैन नॉट बी टेकन एज दो इट इज गुड जज ऑफ परफॉर्मेंस, but unless you try people on the international level, you cannot really see that they are emerging as new players, good players or या not. उसका मैच प्रेशर बड़ा डिफरेंट होता है, उस यानी अपनी कंट्री को की तरफ से खेलना, डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाके खेलना, फिर ये जो क्राउड्स जिस तरह के आएंगे अभी आपके एशिया कप में, 70% वहाँ पे इंडियन बैठे होंगे,
वो उस एनवायरनमेंट में खेलने में और खाली स्टेडियम में खेलने में बड़ा फर्क होता है। तो ये जो मेंटल स्ट्रेंथनिंग है उसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल है, दो बोर्ड इस पे काम करता है। लेकिन अभी अगर आप ये जो दूसरा बात आप करना चाह रहे थे, अगर आप इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ देखें या इंडिया की टीम के पास अवेलेबल रिसोर्सेज की लाइन देखें, वो बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है, और उसकी निस्बत हमारे पास बहुत बड़ी ऑप्शंस भी नहीं है। और फिर हम बहुत जल्दी लोगों से हाथ हटा लेते हैं। सलमान मिर्जा को आपने एक बड़ा अच्छा रूकी चांस दिया, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म कर दिया, आपने उसको ड्रॉप कर दिया आगे लेके, क्योंकि अब आप वेस्ट इंडीज जा रहे थे तो आप पुराने लोगों को लेके चले गए फिर दोबारा। तो ये सहरे खेने कराने वाली चीज जो है ना जी, अब पास करने की जरूरत है। 4 ओवरों में 40 रन एक ऐसी विकेट पे जहाँ पे 130 रन बन रहे हो, ये तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है किसी भी सूरत में। और Yes, अगर sir. आप Keep us 8वें 9वें नंबर से वेस्ट इंडीज के एक ओवर में 15-18 रन खा लेते हैं, तो फिर तो आपको बॉलर के लाने का कोई खास हक नहीं है। Yes, sir. Fingers crossed. That's all we can say. कि अपनी टीम को बेस्ट ऑफ लक ही कहेंगे। इनोवेट जब तक नहीं करेंगे तब तक हम इस तरह से T20 के फॉर्मेट में हम एक्सेल नहीं कर सकेंगे। You're लेकिन right कि आई थिंक बाबर जैसे मेरा खिलाड़ी मेरा चाहिए। ख्याल ये है कि 1 or 2 changes in the bowling lineup on the fast bowling side. Spinners are doing good. And 1 or 2 changes in the batting lineup where you need some kind of a depth in the batting and some strength in the batting. ये इस वक्त हिटर्स है, आप देखें ना, साइम इज अ हिटर, अपना फरहान इज अ हिटर, फखर इज अ हिटर, सलमान आगा इज द ओनली पर्सन हु इज अ प्रॉपर यानी Stroke maker. क्रिकेटर, और ये He's जो a स्ट्रोक stroke मेकर, maker. स्ट्रोक Yeah. मेकर। देन यू कम इनटू हसन नवाज इज अ हिटर, Yeah, he's a pinch नवाज hitter. इज अ You're right. हिटर। सो बेसिकली फहीम अशरफ इज समवट जो कि थोड़ा Power खड़ा हो hitter. Yeah. जाता है और उसको इनिंग्स बना सकता है, उसमें वो स्ट्रेंथ है, उसमें मेंटल स्ट्रेंथ है। रेस्ट आर ऑल हिटर्स। And you need a couple of more power hitters in your team if you want to excel. आपने बिल्कुल सही कहा सर। Let's talk about the wonderful series, exciting test series Excellent. between England and Amazing the series. visitors India. Sir, England leading the series, as of now by 2-1. But India's wonderful comeback in the game number 4 at Old Trafford. They secured a draw from nowhere, sir. Unbeaten centuries by Jadeja and Sundar. एंथ्रॉलिंग सर, 5वां टेस्ट है, आखिरी 5वां दिन है सर सुबह। और अगर डे 4 की बात करें तो इंग्लैंड जिसे 374 रन 374 का टारगेट मिला, दे वर 6 डाउन on 339 runs, needing further 35 runs to win the series by 3-1. On the other hand, India is also in the hunt. They need just 3 more wickets. चौथी विकेट इसलिए नहीं क्योंकि क्रिस वोक्स इज इंजर्ड एंड इज अनलाइकली टू कम फॉर बैटिंग। उसने पहली इनिंग में भी बैटिंग नहीं की। सर, पॉसिबली क्या लग रहा है, पहले सेशन में गेम खत्म हो जाएगी? लगता है आपको क्या इंडिया 3 विकेट्स लेगा या फिर 35 रन बनेंगे? प्रेशर तो बहुत है यार, इंग्लैंड के पास एक चॉइस है रोलर की, वो हार्ड रोलर करवाएंगे ताकि विकेट थोड़ी सी बैठे। तो मेरा अपना ख्याल तो ये है कि इंग्लैंड 35 रन बना जाएगा। इतने उनके बुरे नहीं है, हमारी टेल नहीं है जो कि 5 मिनट के अंदर बैग फारिग नहीं हो गिरेगी। जाती है। इट इज़ नॉट दी काइंड ऑफ टेल। हाँ, फर्क ये है कि इस वक्त उनके साथ बैट्समैन कोई नहीं है, रूट आउट हो गया, लिहाजा वो यप हैं सारे टेल एंडर्स। जेमी स्मिथ एंड जेमी लेकिन ओवर्टन आर अगर आप सीरीज की बात करें ना, जो आपने की, बिल्कुल सही कहा, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज व्हिच आई वुड हैव वॉच्ड आफ्टर अ व्हाइल। अनबिलीवेबल। वेरी कंपेटिटिव, हर मैच पांचवें पांचवें दिन में गया, हर मैच का फैसला हुआ। टेस्ट क्रिकेट एट इट्स वेरी बेस्ट आफ्टर अ व्हाइल। इस तरह की सीरीज जनरली होती हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के एशेज वगैरह में, ऐसे ऐसे कंपटीशन देखने को मिलते हैं। और इंग्लैंड, while England obviously is a very good team, India has played in a foreign environment, और जनरली इंडिया को घर का शेर कहा जाता है, हमेशा से ये वाली बात होती है, ऐसा नहीं हुआ। They have played tremendously well on English wickets. They have proven that thing wrong, that they are only good on the Indian or subcontinent wickets, the Asian wickets. This time around their bowling has performed very well. बैटिंग हमेशा से उनकी स्ट्रेंथ रही है, और दिस सीरीज आई एम अमेज्ड टू सी देयर फोर्थ इनिंग्स और थर्ड इनिंग्स comebacks. It is always very difficult to actually bat on the fourth or fifth day of a test match, which they did. अभी आपने बिल्कुल सही कहा, वो टेस्ट मैच बचाना was a मुआवजा almost. They came from nowhere to save that test match.
They played very well in the previous, very well contested, hardly fought matches, all of them, barring the first one which they won by, because उसमें तो शुभमन गिल ने 450 रन बना दिए थे एक ही मैच के अंदर. तो वो, उसके अलावा अगर आप देखें तो वो तमाम मैचेस पांचवें दिन आखिरी सेशन में जाके खत्म हुए. अब ये जो टेस्ट मैच है इसमें अगेन, और इस यू नो, a lot of credit on the England side goes to Root and Stokes. दो सीनियर प्लेयर पूरी टीम का, जिसे कहना चाहिए कि वो साथ लेके चलने वाले, साथ उसका बेड़ा उठाने वाले. जो पिछला टेस्ट मैच था उसमें जिस तरीके से उसने आके नीचे रिटायर होके वापस आके 140 स्कोर किया टेलेंडर्स के साथ, दैट इज अनमैच्ड. तो ये सीरीज, ये टेस्ट क्रिकेट का मजा आ गया बड़े अरसे के बाद. पहली तो बात ये है. दूसरा, इंडिया ने वो चीज काफी हद तक धो दी या मिटा दी कि वो घर के शेर है, बाहर नहीं परफॉर्म कर सकते. अगर कल वो टेस्ट मैच जीत जाते हैं ना, तो दैट वुड बी सीरियस विक्ट्री फॉर देम. आई वुड से, कहने को तो वो ड्रॉ हो जाएगी, लेकिन ये इससे बड़ी विक्ट्री कोई नहीं होगी. यस. तो इंडियन बैटिंग लाइनअप इज इमैक्युलेट, बहुत ही शानदार. नीचे 8वें नंबर तक बंदे आके सेंचुरी कर जाएं, और वो भी इंग्लैंड में कर रहे हो, बहुत मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए उसके लिए. और फिर इंग्लैंड की बॉलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप्स इन द वर्ल्ड. यप. जो इंडिया को थोड़ी बहुत मार पड़ रही है या पड़ती है वो उनकी बॉलिंग की है. दो उनकी बॉलिंग हैज बीन वेरी गुड एज कंपेयर टू व्हाट इट यूज्ड टू बी. स्टिल उनके पास उस लेवल के फास्ट बॉलर्स नहीं हैं जैसे कि शायद इंग्लैंड के डिस्पोजल पे हैं, होते रहे हैं, या साउथ अफ्रीका के हैं, या ऑस्ट्रेलिया के हैं. माइनस बुमराह, जो कि इस दफा थोड़ा सा इंजर्ड भी है और उतनी उसकी फिटनेस नहीं है, या उसकी परफॉर्मेंस लेवल वो नहीं है. माइनस बुमराह उनके पास कोई उस लेवल का बॉलर नहीं है. बाकी बॉलर अपनी मेहनत बहुत कर रहे हैं, उन्होंने ट्राई भी बड़ी अच्छी की है और बॉलिंग भी अच्छी की है. लेकिन अगर उनके पास कोई बुमराह टाइप का सेकंड बॉलर होता तो ये सीरीज वो जीत जाती. या वेरी वेल सेड. बिल्कुल सही कहा आपने सर. फ्यू वर्ड्स फॉर जो रूट, अभी आपने उसका जिक्र किया. उसने अपना टेस्ट डेब्यू भी वर्सेस इंडिया किया था. 13 सेंचुरीज ऑल टुगेदर इन द टेस्ट फॉर्मेट वर्सेस द विजिटर्स, और ओवरऑल 39 सेंचुरीज उसके क्रेडिट 39 में से 13 का मतलब होता है 33% सेंचुरियां इंडिया के लिए. लगता है बहुत ही मोहब्बत है, मतलब जबरदस्त किस्म की. सर ऑलमोस्ट 14,000 रन्स एंड बिहाइंड द ग्रेट सचिन तेंदुलकर जिसके 15,921 रन है. डू यू थिंक ये सरपास करेगा, ये क्लिफ को कर लेगा? नजर तो आ रहा है कि सरपास कर जाएगा विद द काइंड ऑफ फॉर्म ही इज इन द लास्ट 2 years or 3 years. ही हैज बीन परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल. मेरे ख्याल में उससे बड़ा बैट्समैन अभी खैर इस वक्त तो कोई भी नहीं है, फॉर श्योर. फॉर अ वाइल भी कोई नहीं आया. सो अगर आप टेस्ट की कंपैरिजन करें परफॉर्मेंसेस की, तो इससे पहले अगर इस कैलिबर के बैट्समैन देखे जाए तो वो तेंदुलकर, और क्योंकि मैं कोहली को तो टेस्ट का बैट्समैन फ्रेंकली इस लेवल का मानता ही नहीं हूँ. कोहली से ज्यादा अच्छे स्टेटिस्टिक्स यूनुस खान के हैं, मच बेटर ऑन द टेस्ट साइड. Kohli has been a great one-day player, and then obviously to some extent in T20. But on the test side, if you compare in the last decade or so, the players you would have seen would be Joe Root, Steven Smith to some extent, yes, करीब आ जाता है. रिकी पॉन्टिंग थे पहले, तेंदुलकर रहे, और ये उस क्लब का बैट्समैन. केन विलियमसन भी सर एक क्लास रहा है. केन विलियमसन बिल्कुल. तो सो और अभी के वक्त में अगर कोई बंदा आगे जा रहा है, ये मेरा अपना ख्याल है कि वो 50 सेंचुरी तक तो नहीं पहुंचता, लेकिन 45-46 तक तो चला जाएगा अपने कैरियर में, और ये 16,000 रन भी कर जाएगा जिस फॉर्म में वो है. राइट सर, थैंक यू सो वेरी मच for the wonderful words and everything, sir. इतना आपने कीमती टाइम दिया रात के इस वक्त. Most welcome. I'm really obliged, sir. Really interesting. Sir, looking forward to seeing you, in the ODI series as well versus West Indies, Pakistan. अल्लाह ताला करे जी उसमें को हमारे बाबर साहब वापस आए, और बाबर रिजवान अपनी फॉर्म नहीं आ रहे हैं. पहुंच तो गए हैं वहाँ पे, वो मोहसिन नकवी साहब के साथ वहाँ पे पानी वानी पी रहे थे ठंडा. Sir, thank you very much, sir, once again. Okay. So, viewers, that's all for tonight, and we'll be hoping to see you again. Thank you very much. God bless you.